highly educated students should focus on generating employment rather than merely seeking jobs. They must embrace creativity and move towards startups. Gaining advanced knowledge in areas such as semiconductors, hydrogen technologies, and artificial intelligence is essential, said Dr. Rajendra Jagdale, Director General and Chief Executive Officer of the Science and Technology Park, Government of India. He was speaking as the chief guest of the inauguration of the 3-day international conference on emerging trends and technologies organized by the Department of Electronics and Telecommunication Engineering at ISBM College of Engineering, Nandi, Pune. The event was attended by Dr. Naveen Kumar Agarwal, Pro Vice Chancellor of Bhopal University, Dr. Ashok More, Executive Member of the Indian Society for Technical Education, and Mr. Neeraj Kumar, Delivery Project Executive at IBM, who presided over the function. Also present were Dr. Pramod Kumar, President of ISBM College of Engineering, Dr. A.M. Sapkal, Academic Dean, Professor Sitaram Lonia, Chief Coordinator of the conference, and Professor Neha Singh. Money, maybe money from industries, money from the government, but you are the guys who convert whatever knowledge we have created through basic sciences, you convert that into money again. So creation of knowledge into wealth is what you people do as an engineers. And whatever good or bad happens to the society, to the cities, and to the world, it's contribution of engineers. If no good house is constructed, you are responsible. If no good road is constructed, you are responsible. If no good technology comes, you are responsible. If you are creating industry which is polluting, you are responsible. So you are also responsible for solving these problems. You know that India has become one of the world's most polluted towns, polluted country now. Complex real-life problems and will help to achieve sustainable goal development, keeping progress of India till 2030. Experience in the conference will lead to innovative and design thinking for all the participants. We have tracks in AI, machine learning, data science, communication, computing and cybersecurity, electronics, VLSI and embedded system, and biotechnology. I hope this particular conference will help each and everyone, and I urge to our participants as well as students to take advantage of this 4th International Conference on Emerging Trends and Technology today. Thank you very much. ISBM College of Engineering ह्या इन्स्टिट्यूटकडून 3 दिवसासाठी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज करण्यात आलेली आहे. ही कॉन्फरन्स इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन महाराष्ट्र गोवा सेक्शन यांच्या असोसिएशनमध्ये आहे. IST न्यू दिल्ली ही टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये असणाऱ्या प्राध्यापक, स्टुडंट यांच्यासाठी काम करते. त्यांनी केलेलं काम त्यांना अवॉर्ड देणं, त्याच्याशिवाय कॉन्फरन्स, STTPs, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, प्लेसमेंट त्यांना असिस्ट करणं, म्हणजेच ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट ही त्या माध्यमातून घडत असते. आणि ISTच्या असोसिएशनमध्ये ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगनं हा चांगला इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. आणि ह्या माध्यमातून जे आपल्याला प्रश्न पडतात रोजच्या जीवनामध्ये आणि ज्या इंडस्ट्रीना जे प्रॉब्लेम्स असतात, चॅलेंजेस असतात, ते सॉल्व करण्यासाठी ह्या पेपर्समधून, पेपर आणि रिसर्च ओरिएंटेड पेपर्समधून ते पुष्टी मिळते. आणि त्याच्यामुळं जे काही सोल्युशन्स आहेत ते फास्ट ट्रॅकवरती येतात. आपलं जे भारतातलं जे यूथ ब्रेन आहे ते NEP ओरिएंटेड, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ओरिएंटेड करून 52% पेक्षा जास्त जे शाळेतले विद्यार्थी आहेत ते हायर एज्युकेशनला येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून नवीन स्टार्टअप्स, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून पुढे येतील आणि जॉब सिकरच्या ऐवजी जॉब देणारे आपले विद्यार्थी घडू शकतील. हा पाठीमागचा उद्देश आहे. Yeah, and now thanks for putting this question. Basically, see, these kind of conferences results in multiple visibilities. And as a student, if I recall my student days, that time we were
kind of not that privileged to have these kind of seminars, because had these kind of seminars been there at that point of time, I would say India would have developed like the concept of this seminar was emerging technologies. But one thing I would like to highlight here is, see, I would like to narrate a story from Mahabharata. I mean, जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जब वो डायस का गेम हुआ था तो कौरवास हैव हायर्ड शकुनी एज देयर कंसल्टेंट, राइट? अगर उसी वक्त पांडवास वुड हैव हायर्ड कृष्णा एज देयर कंसल्टेंट, द रिजल्ट ऑफ द गेम वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट. दोनों के पास, शकुनी के पास, कृष्णा के पास, दोनों के पास टेक्नोलॉजी था, दोनों के पास नॉलेज था, दोनों के पास सब कुछ था, बट देन एक ह्यूमन एंगल मैटर करता है. तो आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ तो हैं ही, वो दे आर ऑल एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एंड एज आई सेड, द टेक्नोलॉजीज विच आर देयर टुडे माइट नॉट बी देयर टुमारो. दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज एट विच द टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग. बट स्टूडेंट को अगर ये विजिबिलिटी अर्ली एज में मिल जाता है, उनको ये समझ में अच्छा से आ जाता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. एंड ऑल देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच डॉक्टर राजेंद्र नरेटेड टुडे मॉर्निंग, दैट राइट नाउ वी शुड फोकस ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट rather than being an employee, right? तो वो आज इंडिया उस स्टेज पे है जहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? सिर्फ कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से. कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, तो इस कॉन्फ्रेंस का प्लानिंग हमारी 6 मंथ अगो हुई है, जैसा हमारे डीन सर ने बताया. और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये स्कोपस इंडेक्स्ड है. स्कोपस इंडेक्स्ड अभी के बहुत ही लार्जेस्ट और रिप्यूटेड एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन डेटाबेस है, जिसके लिए आपको आपका जो पेपर होता है या रिसर्च वर्क होता है उसका ऑथेंटिक होना और रियल टाइम डेटा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पेपर वहाँ एक्सेप्ट होता है. एंड वी आर गोइंग विथ 100 पेपर्स नाउ, जिनको हमने निकाला है 300 पेपर्स को फिल्टर आउट करने के बाद. और ये पेपर्स हमारे पास वर्ल्ड वाइड आए हैं. वी हैव 10 पेपर्स फ्रॉम UK एंड US. वी हैव 4 to 5 पेपर्स फ्रॉम जर्मनी. और ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास कर्नाटका, बैंगलोर, आपका मैंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड मैनी मोर प्लेसेस दे हैव सबमिटेड द पेपर फॉर द कॉन्फ्रेंस. यस सर, पुणे से वी हैव यस पुणे से, बिल्कुल पुणे से हमारे पास, हाँ महाराष्ट्र से भी है. अमृतवाहिनी कॉलेज से हमारे पास पेपर्स हैं, अहमदनगर से पेपर हैं, DY पाटिल के पेपर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पेपर. इस कॉलेज के भी हमारे पेपर्स हैं. हमारे पास 52 अराउंड स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं और 50 इस कॉलेज के, और 50 अराउंड फैकल्टीज के पेपर्स हैं. PhD जो परसुइंग कर रहे हैं उनके भी पेपर्स हैं हमारे पास. और हमारे पास सेवरल फील्ड्स में पेपर्स हैं. मैनेजमेंट है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका AI है, ML है, डेटा साइंस है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से है. हमारे पास वर्ल्ड वाइड बहुत सारे पेपर्स आए थे, जिनको हमने फिल्टर आउट करके 100 पेपर्स का प्रेजेंटेशन रखा है. एंड 200 पेपर्स विल बी गो फॉर द पब्लिकेशन इन स्कोपस जर्नल्स. फिल्टरेशन के लिए हमने कुछ रिव्यूअर्स को रखा था, और दे रिव्यूअर्स जस्ट रिव्यू द पेपर कि उनका जो डेटा है, चाहे अभी के जो भी उनका इम्प्लीमेंटेशन है इन द वर्क, वो अभी रिसेंट का हो, ऐसा हमने चेक किया था. और जो हमारे रिव्यूअर्स थे वो भी इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर हैं. हमने